بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق الله العظيم. جھکی ہوئی یہ زمین ہے حضور دیکھنا ہمارا کر بے غزی ہے حضور دیکھنا. جو ATM کو رکوانا چاہتے تھے، طرح طرح کی سازشیں کر رہے تھے، آج وہ اپنی سازشوں میں ناکام ہوئے. اور یہ کامیابی آپ سب کی کامیابی ہے کہ بس سلسلہ الیکشن 2024 اور 25 کے سلسلے میں یہ ATM منعقد ہو رہی ہے. اس میں چند قانون پاس کیے جائیں گے آپ کے تعاون سے، آپ کی تائید اور حمایت سے. اور آئندہ جو بھی آپ کا 1960 کے حساب سے آئین ترتیب دیا جائے گا، آپ کی اتنی طاقت ہے کہ جو قانون آج آپ پاس کریں گے وہ الحمدللہ آئین کا حصہ ہوگا. اور آئندہ باڈی اس آئین اور قانون کے تحت اپنے آپ کو رول کرے گی. تو یہ تمام لوگ سن لیں کہ اس پہ اگر ڈپیٹ کرنا چاہیں، اس کو شریک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. آج سرجانی پراپرٹی ڈیلر اپنے تمام رجسٹر ممبران پر فخر کرتی ہے. اگر احتجاج کا مسئلہ ہو تب بھی وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. کوئی قانونی نقطے میں کہیں بھی ہمیں دشواری ہو تو ہمارے ساتھ سب کی حمایت شامل ہوتی ہے الحمدللہ. میں نے آپ کے سامنے پہلا نقطہ رکھ دیا ہے کہ 3 رکنی سپریم کونسل کا قیام ہم سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے. آپ اس کے مطابق کیا سمجھتے ہیں کہ آیا یہ بنا دی جائے یا اس پر کوئی بحث کی جائے؟ یہ سپریم کونسل آپ سے منظور کی جائے گی. اسے مینیجنگ کمیٹی اپنے لوگوں کی تائید اور اجلاس کے بعد نامزد کرے گی. 3 رکنی کمیٹی. تقریباً تمام حضرات ہاتھ اٹھا لیں. یہ ذرا نوٹ کر لیں کہ تمام حضرات اس کی تائید میں کہ سپریم کونسل کی تشکیل کر دی جائے. تالیاں. قرارداد نمبر 2 7 دسمبر 2024 بروز ہفتہ پولنگ کا دن مقرر کر دیا جائے یا اس میں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں؟ ہم نے آج الحمدللہ الیکشن کی تاریخ کا اناؤنس کر دیا ہے. آپ سب کی طرف سے اس کی تائید کی جاتی ہے. الیکشن کی شفافیت منصفانہ انعقاد کے لیے جوائنٹ اسٹاف کی نگرانی میں کرانے کی تجویز کی جا رہی ہے. اور ادارے کے لوگ اپنی نگرانی میں الیکشن کرائیں اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ کہ ادارے اس کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں. تو تمام حضرات ہاتھ اٹھا کے اس کی تائید کریں. اس پر آپ سب کی تائید ہے. الیکشن پینل کے ذریعے کرایا جائے. پینل کے ذریعے الیکشن منعقد کیا جائے تاکہ ہر شخص کو اپنی نمائندہ پینل کھڑا کرنے کا حق ہوگا انشاءاللہ. 1 to 1 الیکشن کیوں نہیں ہوتا؟ تو پینل کے ذریعے کیوں ہو سکتا ہے کسی آدمی کو پسند نہیں کرتے آپ کے پینل میں تو وہ تو چند لوگ جب اس میں ہوں گے تو وہ تو پینل سے جیت جائے گا. تو بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے 1 to 1 ہو.
अगर सदर है तो सदर का इलेक्शन हो, ये बहुत से लोग हम जिनको पसंद नहीं करेंगे वो भी इलेक्शन जीत जाएगा पैनल के से, एक वोट जाएगा। अभी पैनल टू पैनल पहला इलेक्शन है हमारा और इसमें पैनल टू पैनल ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 150-200 अफराद में यकीनन ऐसे काबिल तरीन लोग हैं जो अपना पैनल खड़ा कर सकते हैं। किसी की इसमें पसंद और नापसंद नहीं, आपने ये देखना है कि काम कौन कर रहा है। यहाँ पसंद ज़ाती अनाज नहीं होगी, यहाँ पर अगर कोई चीज़ होगी तो ये देखा जाएगा कि उस शख्स में या उस पैनल ने कोई काम करा है या नहीं करा है, अच्छे चेहरे आ रहे हैं, ये काम करने वाले हैं या नहीं है, इस बुनियाद पर वोट डाला जाएगा। ना कि मुझे अगर कोई शख्स पसंद नहीं है आमिर भाई तो मैं वोट ना दूँ, ऐसा नहीं है। मैं ये देखूंगा कि कारकर्दगी आमिर शेख भाई की कैसी है, आमिर भाई की कैसी है, खालिद भाई की कैसी है, ये पैनल काम कर सकता है, अहल है या नहीं है। इस बुनियाद पर ये पैनल बनाकर हम इलेक्शन पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। आप तमाम हजरात की तारीफ हासिल है, इसके अंदर हाथ उठा के इस करारदाद को मंजूर कीजिए। सब देख लें, बनाए तो पैनल टू पैनल हो रहा है और आने वाला वक्त जब हम यहाँ पर दूसरा तीसरा इलेक्शन चलाएंगे तो ये तजवीज़ हमारे जरूर हो रहे हैं। करारदाद पर नंबर 5 मैनेजिंग कमेटी 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और एक स्पोर्ट्स कमेटी का इजाफा कराने की तजवीज़ पेश कर रही है। यानी कि हमारे जो मेंबरान हैं, जो हमारी कमेटी होगी वो तकरीबन 19 अफराद पर मुश्तमिल होगी। आप कम करना चाहें कोई पैनल अगर 14 रहना चाहे तो 14 से रह सकता है, कोई 10 से रहना चाहे 10 से रह सकता है। हम जो अपनी कमेटी तश्कील दे रहे हैं, पहले जोनों की नुमाइंदगी हमारे पास नहीं थी। हमारे यहाँ रजिस्टर बॉडी के अंदर जोन से कोई एग्जीक्यूटिव मेंबर रजिस्टर्ड नहीं था। इसकी हमने कोताही देखी, इसमें बहुत सारी खामियां देखी कि उनका पैगाम नहीं पहुंचा था हमारे जोनों में। जैसे कनीज फातमा है या 6 है या 7 है, यहाँ से जो जोनल मेंबरान थे हमारे वो हमारे रजिस्टर में नहीं थे। हमने ये देखते हुए मदद रखते हुए कि यार बहुत मेहनत करते हैं जोन में जो हमारे लोग शामिल हैं, तो उनकी कारकर्दगी को देखते बनाने की तजवीज़ पेश करी है। जो जोन में हमारे साथ काम कर रहे हैं वो एग्जीक्यूटिव मेंबरान, ओहदे तो अलग होंगे, एग्जीक्यूटिव मेंबरान की हैसियत से इसमें शामिल करने जा रहे हैं। आपकी इसके अंदर तारीफ हासिल है, हर इसके अंदर जोन की नुमाइंदगी अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगी। हमारी एसोसिएशन में और बहुत सारी एसोसिएशन में ये देखने में आया है कि बहुत सारे इख्तिलाफात चेयरमैन और सदर के दरमियान पैदा हुए कि चेयरमैन का ओहदा एजाज़ी क्यों होता है। जहाँ सदारती तौर पर किसी को मुंतखब किया जाए और सदारती तौर पर किसी भी एसोसिएशन, ट्रेड यूनियंस या सियासी पार्टी को चलाया जाएगा, वहाँ एग्जीक्यूटिव इख्तियार सदर को हासिल होते हैं, चेयरमैन को नहीं होते। लिहाजा हमारे पास जो निज़ाम है वो सदर एग्जीक्यूटिव है। इसमें चेयरमैन का ओहदा सिर्फ एक एजाज़ी होता है और उसे हम बरकरार रखते हुए और एजाज़ी होने के तौर पर बरकरार रखते हुए हम उसे तस्लीम करेंगे। तमाम इख्तियारात तमाम एग्जीक्यूटिव सदर के पास होते हैं। आया ये करारदाद आपके सामने पेश की गई है, इससे इख्तिलाफात बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और यकीनन हमारी मिशन बहुत तरक्की करेगी, रात भी तरक्की करेगी। ये करारदाद आपके सामने पेश की गई है। किसी साहब को कोई एतराज़ हो तो खालिद भाई से माइक लेकर सवाल कर सकते हैं। अच्छा, ये चेयरमैन का जो आप बता रहे हैं, आया कि ये पैनल में से ही मुंतखब होंगे या पहले से मुंतखब चेयरमैन हुआ होगा? इसके अंदर जो इलेक्शन में पैनल में खड़ा होगा उसे वोट दोगे तो वो चेयरमैन मुंतखब होगा। पहले से कोई पार्टी का कोई रुकन नहीं होगा। हमने सारे इख्तियारात सदर के साथ मुंतकिल कर दिए हैं। अब सिर्फ आपकी तारीफ हासिल है ताकि आइंदा कोई खलफिशार पैदा ना हो सके। तो आप इसकी तारीफ करते हैं सब। हमने महसूस करा कि इस सिचुएशन के लिए हर बर्दारी की जाए ताकि कोई शख्स भी इस सिचुएशन से गद्दाराना रवैया, मुनाफिकाना रवैया ना इख्तियार कर सके। तो तमाम मैनेजिंग कमेटी बाशमूल सदर, चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी, मेंबरान सब ने हमने हलफ लिया। जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबरान भी थे उन्होंने भी हलफ उठाया। हमने हलफ ये उठाया कि हम किसी तौर पे भी आल सरगानी, प्रॉपर्टी डीलर, वेलफेयर एसोसिएशन को किसी तौर पे भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पिछला 8-9 माह से चंद अफराद जो नाराज़ बलोच कहलाते हैं उन्होंने इस हलफ की पासदारी नहीं की। मुसलसल इस हलफ की हम खिलाफ वर्जियाँ करते रहे और ये समझते रहे कि एसोसिएशन हमारे घर की और हमारी है, ये एसोसिएशन आपकी है और जो लोग इस पर आकर बैठेंगे उनकी होगी, न सदर जिंदगी हमारी है न सदर जिंदगी उनकी है। तो वो चीज़ें जिसकी बुनियाद पर हलफ की खिलाफ वर्जियाँ की गई, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आज की एजीएम
जो मुनक्किद हुई है और इतनी कसीर तादाद में मेम्बरान यहाँ आए हैं, इस बात की गमाजी कर रहे हैं कि जिन लोगों ने हलफ से बाकियाना रवैया अख्तियार किया, आज वो अपनी नाकामी महसूस कर रहे होंगे और वो देख रहे होंगे कि आज सरजानी प्रॉपर्टी डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के वो वफादारान जिन्होंने इस प्रोग्राम को अरेंज करा है, आज अल्लाह ताला ने आपकी शक्ल में कितनी बड़ी कामयाबी अता की है, आपको तसव्वुर भी नहीं है। आज तो मैं आपसे एक तजवीज़ तलब करता हूँ कि आइंदा जो लोग भी हलफ से रुखगर्दानी करें, क्या ये इख्तियार मैनेजिंग कमेटी को आप देते हैं कि उनके इस बाकियाना रवैये से फारिग करने का इख्तियार देते हैं, ताकि हलफ की रुखगर्दानी ना हो। देखो हमने हलफ उठाया अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के, स्टेशन के मरकजी ऑफिस का पता तब्दील करने के लिए मेम्बरान की मंजूरी दरकार है। आया आप सब तायीद करते हैं कि हम ऑफिस का पता तब्दील कर रहे हैं? तो मेरी एक ख्वाहिश है कि अगर एक ही पैनल बना तो फिर आज़ाद हैसियत से फिर लड़ना चाहिए इलेक्शन, और अगर मुकाबला नहीं हो तो फिर बेकार है। मुकाबला होना चाहिए, कम से कम 2 से 3 पैनल हो तो फिर कंटेक्ट हो, इलेक्शन में मजा है। इलेक्शन सरजानी का होने जा रहा है तो पैनल की सूरत में, और दूसरा पैनल भी खड़ा हो सकता है, 10 अफराद पे भी हो सकता है। वो 5 अफराद पे खड़ा करके पैनल अपनी बॉडी बनाना चाहे, 10 अफराद पे बनाना चाहे, 14 अफराद पे, जैसे चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन पहला इलेक्शन है तो पैनल की सूरत में किया जा रहा है। अगर कोई शख्स जानता है और ये 200 अफराद बैठे हुए हैं, क्या इनमें से पैनल नहीं बन सकते? आप अपनी काविशें करें। हमारी जो मैनेजिंग कमेटी को 14 लोग बॉडी का हिस्सा है, बाकी हम लोगों ने अपने तौर पर उनको एक्स्ट्रा चार्ज किया। जब एक मैनेजिंग कमेटी आप 19 लोगों से तैनात कर दी पैनल की सूरत में, तो पहला इलेक्शन लड़ेगा, ऐसे तो इलेक्शन तब 5 लोग आगे कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? जब वो 5 लोग आएंगे आपसे बैठ के डिस्कशन करेंगे, आइन तरतीब किया जाएगा। देखो पैनल बनने से मुराद ये कि आप जब बैठ कर कोई आइन तशरीफ देंगे तो एक 1-to-1 पैनल बैठे इसके लिए। अगर 19 अफराद की तो 14 तो कम से कम हो गए ना, 14 होंगे। हाँ, 5 नहीं 14 अफराद कम से कम, पहले 14 अफराद कम से कम पैनल बना। इलेक्शन का जो तखमीना हमने लगाया है वो तकरीबन 4 लाख रुपए है। ये इलेक्शन का जो प्रोसेस है पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन तक, उसकी रजिस्ट्रेशन हासिल करने तक कि वो 4 लाख रुपए का तखमीना है। अगर कोई पैनल खड़ा होता है तो उसमें मसाली तकसीम कर दिया जाएगा। 2003 से मैं आप पे बैठा हुआ था सदर बन के, अब मुझे खुशी होगी नई वार्डी आए, नए लोग आए, नए बच्चे आए, और उनको आप लोगों ने चुनना है, आपने अपने लोगों में से चुनना है। आप किसको बेहतर समझते हैं, क्योंकि आइंदा आप लोगों का इससे बहुत बड़ा मुस्तकबिल बात पड़ता है। अगर आपने किसी गलत लोगों को चुन लिया, मुनाफिक किस्म के लोगों को, तो वो आपको नुकसान देंगे, मुझे या किसी और को नहीं, आप सबको नुकसान देंगे। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि अच्छे सुलझे हुए पढ़े हुए लोग और आपका हर जगह साथ देने वाले आपके शाना बचाना खड़े हों। ये ना हो कि आपके मुंह में कुछ हो, पीछे कुछ हो, बदमानी करें। और आप लोग काम है अपने अदारे को, अपने सोचाने के लोगों को, अपने बरोबर भाइयों को मजबूत करना, इनके साथ खड़े रहना। छोटी मोटी लड़ाई होती है, बैठ के कमरे में कर लें, ना के वॉइसों पे या ग्रुपों में आके पूरे पाकिस्तान को सुनाया जाए, या अपने लोगों को एक इदारों को इन्वॉल्व कर। मुझे दुख इस चीज़ का है कि कुछ हमारे नादान दोस्त, उन्होंने कुछ लोगों को, इदारों को इन्वॉल्व कर हमारे बरोबर भाइयों को तस्दीर की, और जब तक हम लोग एक दूसरे का एहतराम करें हमारी कोई नहीं करेगा। हमारा बहुत बड़ा काम है, हम बरोबर आम बरोबर नहीं है भाई, हम सदा भाई आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा, लेकिन बरोबर पे लोग ट्रस्ट करते हैं, लाखों करोड़ रुपये जाते हैं कि भाई आप हमारी प्रॉपर्टी लें या हमारे जो भी मामला में सुविधा करें। तो आप लोगों को अपने काम को पकड़ करना चाहिए। हमारे यूनियन के लीगल एडवाइजर वकील शरीफ एडवोकेट साहब भी तशरीफ ले आए, और ये जो हमारी से गुजारिश है ज़रा एक जोरदार ताड़ी हमारे शरीफ भाई एडवोकेट के लिए। और ये वो मेरे दोस्त हैं जो 21 साल से आपकी यूनियन के अंदर वकील हैं, इन्होंने आज तक 1 रुपया 1 पैसा नहीं लिया हमसे, ये हमारी यूनियन से। इनको जब कहा, जब जिस वक्त कहा, ये उसी टाइम तशरीफ ले आए। तो मैं इनको सलाम पेश करता हूँ हमारी यूनियन का भरपूर साथ देने पर, हमारे लोगों का साथ देने पर। देखिए भाई, यूनियन का मकसद होता है लोगों को जोड़ना, ना कि लोगों के अंदर विचार पैदा करना। आप सबका काम है एक दूसरे को जोड़े, एक दूसरे साथ खड़े रहे, बदमानी पैदा ना करे, जो करे उसको खाली बात करें। ये बात सब सुन ले, मैंने आज तक कभी किसी से 1 रुपया पैसा नहीं लिया, और कोई कहता है मैंने लिया, मुझे आगे यहाँ हल्का क्या उसको देने के लिए तैयार। और जितने मेरे बरोबर भाई पूरी सुलझाने के, मैं इनको सबको सलाम पेश करता हूँ। इनका मुझ पर और अपनी हमारी मैनेजमेंट कमेटी का एहसान है कि इन्होंने जिस वक्त हमने चाहा, जब हमने ऐलान किया कि भाई हमारा वहाँ जलसा है या हमारा वहाँ एहतजाज है या हमारे मसले मसाइल है, वो हमारे साथ सीना पर सीना खड़े रहे। और मैं अपनी इसी मौके को देखते हुए मैं अपने जितने भी मेरे ये 14 लोग जो हैं मेरे साथ सोशल पार्टी के अंदर मेम्बरान, मैं इन सबको
तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये मेरे सीधा पसीना मेरे साथ खड़े रहे। माशी हालात को मद्देनजर रखते हुए ये सब कुछ आप लोग जानते हैं। यकीन करें बहुत सारे हमारे को ब्रोकर और डीलर हजरात ऐसे हैं जो हमारी इमदाद के मुस्तहिक हैं, जो चाहते हैं कि कोई ऐसे नुमाइंदगी हमारी हो जो हमारी खैरियत भी दरियाफ्त कर सके। हमें उनके मुताबिक भी सोचना चाहिए। और वो रियल्टर भाई यकीन करें बहुत परेशानी के आलम में हैं। उन बेचारों ने 3 साल हमारा साथ दिया भरपूर अंदाज में, लेकिन आज वो मजबूर है माशी हालात के तहत। और जो आपके सामने सरजानी की इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही है, सबसे बड़ी रुकावट हमारे सरजानी के कारोबार में माशी हालात के साथ साथ सरजानी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। हमने उनकी परेशानी को मद्देनजर रखते हुए और माशी हालात को मद्देनजर रखते हुए इस बात का पूरी मैनेजिंग कमेटी ने एक फैसला किया। पूरी मैनेजिंग कमेटी ने 1 घंटे तकरीबन बैठ कर इस पर गुफ्तो शरीफ की, डिबेट की और इस नहज पर पहुँचे कि यार अगर हालात आज उनके साथ हैं तो कल किसी के साथ भी हो सकते हैं, हमें उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं अपने तमाम यहाँ पर आए हुए मोअज़्ज़िज़ रियल्टर बिरादरी से गुजारिश और अर्ज़ है, हाथ जोड़ के अर्ज़ है कि हम उनको वोट का हक देना चाहते हैं कि आप आज उनकी दिलजोई के लिए ये करारदाद मंजूर करते हैं। हम तमाम उन रियल्टर को वोट का हक देना चाहते हैं जो इस कारोबार से वाबस्ता है, लेकिन अपनी स्टेटस मजबूरन उन्हें बंद की है। यकजहती जो है वो कामयाबी है, और आज आप लोगों ने फिर ये साबित किया, तमाम भाइयों ने यहाँ पर दोस्तों ने जमा होकर, कि मसाइल जो हैं वो सबके मुश्तरका हैं और यकजहती ही में बरकत है कि आदमी जो खुदा से डरता है वही तूफा का रूप बदलता है। शब गुज़ीदा उदास लम्हों में हौसला ही जवान रखता है, और वही देगा सुराग मंजिल का ठोकरें खा के जो संभलता है। तो अब ये चूँकि एक तनावर दरख्त बन चुका, आपकी एसोसिएशन 21 साल की हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 21 साल में वो काम नहीं हो सके, नशे व फराज आते रहे। लेकिन अब जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हालात जो है दिन ब दिन दगरनू होते जा रहे हैं। कारोबारी हालात भी अच्छे नहीं है, माशी हालात जो है वो आप लोगों के सबके ही तकरीबन जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, और हमारे शहर के हालात भी आप सब देख रहे हैं कि मुनासिब नहीं है। तो ऐसे हालात के अंदर अपनी बका की जंग लड़ना, अपने कारोबार की बका की जंग लड़ना और कानून के दायरे में रहते हुए ये बहुत मुश्किल है। तावक के हम एक दूसरे का साथ ना दें तो मुमकिन नहीं है कि कामयाबी हो सके, क्योंकि जो थोड़ा बहुत काम लोगों का चल रहा है तो वो रिश्वतों की नज़र हो जाता है। रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएं तो वहाँ रजिस्ट्रार मुंह खोल के बैठा है। पहले ये सब कुछ नहीं होता था, लेकिन अब जो आए हैं वो सिर्फ कमाने के लिए आएंगे, वो भरपूर पैसा देकर आए हैं। आपको जो आपके बच्चों की रोजी रोटी वो भी छीन ली जाती है वहाँ पर, नहीं तो काम में रुकावट डाल दी जाती है। तो इन तमाम मामला को हल करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप यकजा हो जाएं, यकजा होकर अपनी ये जो तंजीम है इसके हाथ मजबूत करें। यकजहती में बरकत है। अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, खाक हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे, अपनी ही मिट्टी पे यानी कि अपनी ही सरजानी पे चलने का सलीका सीखो, संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। तो हमने 21 साल पहले भी अल्लाह बख्शे हम जो हमारे चेयरमैन साहब थे, चेयरमैन वारसी साहब बहुत से आदमी थे और हमारे सभी साहब, तो मैंने उससे भी इनको एक तजवीज़ दी थी, शरीफ भाई को भी दी थी। शरीफ भाई को भी बताया कि भाई हम ऐसा करते हैं, 2-4 आदमी जो बुजुर्ग हैं उनके नाम से कोई अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में, और उसमें जो भी हमारे मेंबर हैं वो या जो ज़कात या खरात के कोई पैसे देना चाहता है वो उस फंड में जाए। अगर हमारे मेंबरों में से कोई ज़कात या खरात के पैसे उसको लेकिन उसकी इज्जत नहीं होनी चाहिए, उसके तक पहुँच जाए। वही बुजुर्ग जो लोग होंगे जिनको लोग सब लोग चुनेंगे उनके नाम से अकाउंट खोला जाए, वो उनको पैसे, जैसे वो बेचारा कोई स्टेट डीलर है वो मर जाता है, उसकी बच्चियाँ हैं, उसका कोई आगे पीछे नहीं है, तो उसमें से उसकी शादी के लिए पैसे दिए जा सकते हैं। अच्छा, उस पर किसी को बोझ नहीं पड़ेगा, 1-1 लाख रुपये देंगे तो लाख रुपये बन जाते हैं, 500-500 रुपये देंगे तो लाख रुपये बन जाएंगे। कोई बंदा उसका डकैती हो गई, उसको मार गए या उससे लूट के ले गए, तो उसकी भी जो 2-4 लोग होंगे हमारे ब्रोकर उसकी तस्दीक करें कि आप ये ऐसा हुआ, अगर फंड में पैसे हों तो उसको दे दिए जाएँ ताकि उसकी इज्जत आपकी मुश्किल हो। ये अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे, आप मेरे लिए नहीं करेंगे। अगर आपको कुछ अल्लाह ने ज़्यादा दिया तो आप ज़्यादा पैसे दे दें, वो चाहे आप ज़कात के दें, खरात के दें, या जो लोग आपस में ब्रोकर आपस में मिला के हज़ार रुपये भी, 500-500 रुपये भी देंगे। तो बहुत साल काम कर लिया, अब मैं चाहता हूँ कि नए लोग आए हैं, आने लगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आने आने में तो उसको कवर कर सकें। और तमाम अपनी मैनेजिंग कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि रातों दिन लगाकर अपनी जेब से फंड देकर इस प्रोग्राम को अरेंज करा। अल्लाह ताला हमें सलामत रखे, हमें खुश रखे, इलेक्शन की तैयारी में अल्लाह हमारे साथ ताउन फरमाए।